welcome to this session. In this session, I'm going to talk about 7 habits of toppers. Now, what do we mean by different habits? अब क्या क्या different habits होती हैं toppers की that I'm going to talk about today here. अब आपने ये देखा होगा कि you might have seen people who are really doing well in their exams. तो बहुत सारी उनकी habits होती हैं, but कुछ लोग ऐसे होते हैं या फिर I would say कि 90% of the habits, these toppers share. So I'm going to describe, I'm going to discuss those 7 habits today which are really important, जिसमें से कुछ topics या कुछ points आपने सुने होंगे and some points might be there जो आपने नहीं सुने होंगे कि यार we should do this also or we can do this also to actually score good marks. And ये traits now most of the toppers they do share these traits. So learn about them and really apply them in your life so that we are doing well here. We are able to do well in our exam. I'll start with the first point. The first point is starting early. What do I mean by starting early? I'm going to, divide this point into 2 parts, first and second. First is starting early. After giving their 10th exam, when they come in 11th or 12th, yeah, even some of the students nowadays, I can see that some of the students right from their 10th, they're very clear. उनका goal clear होता है कि मुझे life में करना क्या है. Right? Once you are very clear with your goal, you have 11th and 12th. आपके पास 2 साल है पूरी preparation करने के लिए. So you can give these 2 years for your preparation. You are already way ahead than others. Then अगर उन्होंने डिसाइड किया फॉर एग्जाम्पल ये भी ऐसा भी मैंने देखा है दैट इन 11th क्लास दे हैव ऑप्टेड फॉर साइंस बट आफ्टर 4 or 5 months they are realizing कि नहीं this is not something that I want to do or this is not the branch that I want to go for. So they go for arts, they go for commerce. But again I would say कि they are very clear with their goal कि यार मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या नहीं चाहिए. So still they are way ahead of those students, way ahead than half of them who are realizing after 12th कि यार मुझे करना क्या चाहिए. Then they are exploring there and they are like 12th हो जाए. After that we are going to start with our preparation. ठीक है. Some of them they don't even focus. I've seen them. You see, check out the interviews of some of the toppers. They don't even focus on their 12th. To a 12th percentage. 12th they focus on their 12th obviously. They don't even focus on their 12th percentage. Reason being उनको इन percent से मतलब नहीं होता है. उनको ये होता है कि यार first division ले आएंगे. That's what we need. This is our basic requirement. Goal set है. That is called starting early. You are so sure of your goal कि आपको और कुछ दिखाई नहीं देता है. भाई 12th है 11th है conceptual कर लेंगे. We'll get first division. But the main aim is CLAT. Yeah, main exam is CAT. Anything there for that matter. Second thing that I mean by starting early is, so first of all, setting your goals early. That's the first point I mean. Second, this is an interesting point because most of us are facing it, but very few, or let us say none of us are actually doing it. Those who are actually not, we are average or below average, ये चीज हम सब कर रहे हैं लेकिन हम realize नहीं कर रहे उस चीज को. That is 10 PM हो गया है. I've studied complete day, ठीक है, and let me 10 minutes के लिए or 15 minutes के लिए let me just watch some Netflix or something else like let me watch the Instagram reels and all. और वो 10 to 15 minutes, why have I taken this point? I've taken this point क्योंकि I have heard students have asked me कि मैम 10 to 15 minutes के लिए चलाते हैं, वो 10 to 15 minutes कब 2 घंटे हो जाता है हमें पता ही नहीं पड़ता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव वेस्टेड these 2 hours. Next you are waking up late next morning. तो you have wasted, आप 9 बजे उठ रहे हो या आप 10 बजे उठ रहे हो, you're waking up at this time, so you have wasted half of your day. And once your day is wasted, आपको guilty feel होता है. पढ़ाई कैसी होती है ये तो आप भी जानते हैं कि once half of the day is wasted, तो how much you can study. So this is a habit of toppers that they are starting early. सुबह उठा 5 बजे उठे या 6 बजे उठे for that matter, they are waking up at 6 o'clock, 6 to 7, 6 to 8, शांति होती है, अच्छे से पढ़ाई कर ली. You're starting your day with, you set your, and in fact if they set up even their short term goals कि भाई एक दिन का ये गोल है, ये चीजें खत्म करनी है. Starting the day early gives them an edge कि भाई हमने 2 घंटे पढ़ाई कर ली स्टार्टिंग के, बिल्कुल शांति थी और फ्रेश माइंड से पढ़ाई हुई है और हमने ये पॉइंट्स पढ़ लिए. अब क्या होगा, बचे हुए दिन के लिए हम बाकी के पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे और मेजर चीज हम सुबह कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. तो they do not face any problem. ये facing this के नींद आ रही है, concentration नहीं हो रहा है, they don't face these kind of problems. ये बहुत ease of, मतलब बहुत easy way में चलता है उनका काम.
once they have started early. आप खुद देखोगे, once you are waking up at 6 o'clock and try getting up at 12 o'clock and the next day, there is a lot of difference. You have gained a lot already once you are waking up early. Second point I'll start with, knowing priorities. सबको पता है ये point. Everybody knows it. Tell me how many of you are working over it. Priorities मतलब priorities, first things first. Okay. These people, हमने ऐसे लोग देखे हैं जो कि एग्जाम के टाइम पे ना एंटी सोशल हो जाते हैं, बात भी नहीं करते, नोट्स बना के रखते हैं, नोट्स भी शेयर नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते. फाइन. एंड आई नो एवरीबडी, आई हैव टेकन सो जनरल पॉइंट्स कि आई नो एवरीबडी कैन रिलेटेड, और इवन द पॉइंट्स आर नॉट जनरल, सो आई गिव यू दोस टिप्स जहां पे आपको लगेगा कि यार ये चीज हो चुकी है हमारे साथ. सो दे नो व्हाट देयर ड्रीम्स आर, दे नो व्हाट देयर गोल्स आर, और उनकी प्रायोरिटी बहुत सेट होती है, ये चीज करनी है. फाइन. शादी हो, पार्टी हो, किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम. आई एम नॉट सेइंग कि दे डू दिस फॉर लाइफ टाइम, यू नो, फॉर, बट एग्जाम से हाफ ईयर पहले, लाइक 6 months पहले या फिर 1 साल पहले, दे स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स. दे आर वेरी क्लियर विद देयर गोल कि यार ये करना है, इसके अलावा हमें ध्यान इधर उधर नहीं देना है. ओके. एंड बेसिकली आई वुड से दैट दे आर सेल्फिश फॉर देयर गोल. और इन दिस केस, you know, selfish is a word जो कि हमें सिखाया गया, this is not a good word, but in this case selfish is a good word. देखिए, you have to be selfish, you have to know your priorities, you have to work on them. ठीक है, मम्मा कहती है घर पे हेल्प नहीं कराते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मम्मा आई विल नॉट हेल्प बिकॉज आई वांट टू स्टडी, आई नो माय प्रायोरिटीज. यू डू दैट. ओके, यू नो द थिंग. अब बाकियों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि प्रायोरिटीज तो पता है लेकिन बाहर खेलने में भी मन लगता है. अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि डू नॉट प्ले, ऑब्वियसली दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन उस केस में भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. एम एक ही होना चाहिए. एंड you know, I'll tell you what, I'll give you an example. What happened, what used to happen in my school, I was not a topper, I was an intelligent kid, but I was never a topper. ये हमारे जो टॉपर्स होते थे ना, दे यूज, जैसे 11th का पेपर है या 12th का पेपर है, सो व्हाट डू दे यूज टू डू, दे ना ऐसे घूमते रहते थे वो स्कूल में. मतलब मैंने उनको कभी ऐसे हाथ में बुक नहीं लेके देखा, ऐसे कभी क्रैम्प करते हुए नहीं देखा, और उनकी वजह से दूसरे बच्चों को टेंशन हो जाती थी. रीजन बीइंग दे हैव बीन स्टडीइंग वेल. व्हाई? क्योंकि अगेन द थिंग कि उनको पता होता था कि यार दिन में इतना टाइम हमें पढ़ाई के लिए निकालना है तो निकालना है. उनके पास पढ़ाई का भी टाइम होता है, एग्जाम से पहले उनके पास रिविजन का भी टाइम होता था. तो जैसे एग्जाम है, प्रैक्टिकल है या कुछ भी है ना, जैसे 10-11 बजे पेपर है, तो वो घूमते हुए नजर आते थे स्कूल में ऐसे. क्यों? क्योंकि पहले सब कुछ पढ़ा होता था. ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी सेट है. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट नोइंग योर प्रायोरिटीज. ये कर लिया, वो कर लिया, 10 चीजें कर ली, लेकिन घूम फिर के जो मेन काम है उस पे वापस आए. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, चलो घूम भी लिए थोड़ा सा, आपने खेल भी लिया थोड़ा सा, आपने यू नो मूवी भी है, मूवी मुझे 15 मिनट के लिए टीवी देखना, तो 15 मिनट के लिए ही देखा. ठीक है, 15 मिनट का वो 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नहीं हो गए कि यार एक बैक टू बैक हमने सीरीज लगा दी कोई और हम देखे जा रहे हैं. स्टे क्लियर, स्टे फोकस्ड. नेक्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज एपेटाइट फॉर नॉलेज. कभी ऐसे लोगों से बात की, टॉपर्स की ही बात करूंगी. यू माइट हैव मेट दोस काइंड ऑफ पीपल जिनसे आप किसी भी चीज के बारे में बात कर लो, अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ पे कुछ नॉलेज मिल रही है, तो they'll stand there, and they would listen. These people listen more. ठीक है, they talk usually less, they listen more, they talk usually less. Appetite for knowledge मतलब जहां उनको लगता है नॉलेज मिल रही है, they'll stand quiet and they'll start listening. Right? What will that do? Related to, अच्छा चलिए मैं related to course बात करती हूँ. Craving for knowledge, that I would also call it as craving for knowledge. Their love for knowledge, and once they have that love, you know, उसमें interest बढ़ता है. I'm not talking about, please do not take this love as other thing, love life. I'm talking about love for the subject. When you love a subject, your interest automatically grows there. Okay? And when your interest grows there, what happens? Your understanding grows there. You understand things well. And when you start understanding them, you do not have to mug them up. ठीक है, रटना नहीं पड़ता चीजों को, चीज समझ आ गई है आपको. मतलब एक try mugging up something, you'll forget it next day or after a week, and try understanding something, you will never forget that thing. ठीक है, अपन लूडो खेलते हैं या स्नेक एंड लैडर्स खेला होगा या ये सारे गेम्स खेले होंगे, किसी ने एक बार सिखा दिया ये रूल होता है, ऐसे खेलना है, भूलते हैं क्या कभी अपन वो रूल्स? ऐसा थोड़ी कि हर बार खेलने बैठते हैं तो पिटाई पड़ती है कि अरे रूल गलत कर रहे हो तुम, भूल गए रूल. नहीं ना,
हमें रूल्स बहुत अच्छे से याद होते हैं, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है. द सेम थिंग हैपेंस विद द टॉपर्स व्हेन दे आर स्टडिंग. इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि दे फॉरगेट डूइंग अदर थिंग्स. First of all, and they understand it well, and they never forget those things. Okay, they never forget those things. उनको याद रहती है चीजें. तो इस केस में क्या होता है, उनको बार बार पढ़ना भी नहीं पड़ता. This appetite for knowledge actually does that. It's a very 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 plus point for them. तभी तो कहा जाता है कि if you are doing something, then either love it or do something that you actually love, so that you develop an interest. ठीक है, रोना नहीं पड़ता कि याद नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता. इसके लिए हमें रोना नहीं पड़ता है. They have a clear appetite for knowledge. I'll go with next point. Very 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 important point कि they never hesitate from asking for help. हमें देखा है एक सम नहीं आ रहा है, और ये उनकी हैबिट में होता है. We are talking about habits. ये उनकी हैबिट में होता है. Right from you can see these traits in them right from 5th or 6th class. ठीक है, वो एलसीएम वगैरह वाली चीजें आती है, प्लस माइनस तक तो सबको समझ आ रहा होता है. एलसीएम वगैरह वाली चीजें आती है, नहीं समझ आ रहा होता, आधी से ज्यादा क्लास को समझ नहीं आ रहा होता है. बट नोबडी विल आस्क, यू नो. और टॉपर होगा ना, वो मैम को छोड़ेगा नहीं, मैम या सर वो जो भी होगे, कि मैम जब तक नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू जब तक आप मुझे समझाओगी नहीं पूरा, मेरे को समझना है. उनको अपने से मतलब होता है. एंड दिस इज अ वेरी गुड ट्रेट, क्योंकि दिस हेल्प्स यू आउट इन योर एग्जाम. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, हमें एक पैसेज समझ नहीं आ रहा, हमें एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा, हमें एक पूरा जैसे लीगल ले लिया, हमें सब्जेक्ट ही समझ नहीं आ रहा, हो क्या रहा है नहीं समझ आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. या फिर एंड दिस इज देयर हैबिट सो जनरल कि उन्हें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, इफ दे नीड हेल्प रिगार्डिंग देयर मॉक्स, ठीक है, रिगार्डिंग देयर स्कोर्स, रिगार्डिंग देयर स्केड्यूल, तो they are ready to take help from anybody and everybody in that case. They never hesitate from asking for help. और बाकी हमारे साथ क्या होता है, जिनकी आदत नहीं होती है, नहीं समझ आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं यार, लोग क्या सोचेंगे, या मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, या एडुकेटर या टीचर क्या बोलेगा कि तुम्हें इतनी सी चीज भी नहीं आती. ऐसा कभी नहीं होता है. द एडुकेटर नेवर सेज दिस थिंग टू यू, और योर टीचर नेवर सेज दिस थिंग. दे विल एक्सप्लेन यू. डांटेंगे कि अरे क्या बात हो गई कि समझ क्यों नहीं आ रहा, बट दे विल अगेन एक्सप्लेन यू. Okay, so never hesitate from asking for help. This thing and using this point in life is actually going to take you places. नहीं समझ आ रहा, पूछा, जरूरत है, पूछा, बिल्कुल ये चीज करनी है. Next point, following routine and not multitasking. Now these students, they have a routine. पता है, I've seen students last year जो कि रूटीन नहीं बनता था उनका, एंड दे यूज्ड टू आस्क फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स एट टॉपर्स कि उनको पता होता है कि दीज स्टूडेंट्स आर गुड, एंड दे यूज्ड टू आस्क फॉर रूटीन. द टॉपर्स नेवर यूज्ड टू शेयर देयर रूटीन आल्सो. दे हैव अ फिक्स्ड रूटीन. ट्रस्ट मी, दीज पीपल हैव अ फिक्स्ड रूटीन. इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे इतना हो जाना चाहिए, इस टाइम पे इतना हो जाना चाहिए, एंड दे आर सो वेल डिसिप्लिन कि वो ये चीजें टाइम पीरियड में, टाइम लिमिट लेके चलते हैं, उस टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में फिनिश भी कर लेते हैं. Okay, but they are not never going to tell you your routine, because this is something that's made by them, and they are, again I would use the word, they're selfish about it. Fine, ठीक है, आपको ये बता देगा यार ऐसे ऐसे चीजें कर लिया कर, लेकिन आपको अपना रूटीन खुद ही सेट करना पड़ेगा according to your priorities. ठीक है, according to the amount of the number of or the amount of hours that you can give. Actually routine आपको सेट करना है. Okay, and these toppers, they actually have a गुड रूटीन से, एक टाइम रूटीन से अपना टेस्ट भी देते हैं. व्हेन दे आर गिविंग टेस्ट एंड दे आर डूइंग थिंग्स ना, वहाँ पे क्या होता है, दे आर नोइंग देयर वीक पॉइंट्स ऑल्सो. ओके, एंड व्हेन दे आर बीइंग डिसिप्लिन एंड व्हेन दे आर फॉलोइंग देयर रूटीन, इनके पास इतना टाइम भी होता है कि दे नो, दे कम टू नो कि यार ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं और मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उन वीक पॉइंट्स पर काम भी कर लूँ. सो they are always ahead of others doing these two things. हमें पता होता है रूटीन फॉलो करना है, लेकिन नहीं फॉलो कर पाते. That's not the same with toppers. Not multitasking, that's the second point. ठीक है, कुछ टाइम के लिए, let me say 6 months, 8 months or 1 year before the exam. I'm not saying multitasking is a good word, right? हम तो सोचते हैं यार ये multitasker है, he or she is excellent. Okay, what happens with toppers? They stop doing these different works right before 4, 5, 6, 7 months before their paper. Then the focus is single direction. यार ये चीज करनी है. तो multitasking, every one of you knows what multitasking is, and actually not multitasking is the key there during your paper. So follow routine, be disciplined, be very clear and do not multitask, right? क्योंकि आपका फोकस जो होता है वो हर जगह डिवाइड हो जाता है.
when you are multitasking, इधर भी ध्यान है, उधर भी ध्यान है, अरे ये भी करना है, अरे यहाँ भी जाना है, अरे even if for 2 months if you are going to leave your gym, or if you are going to, I'm not saying not to take out time to to entertain yourself, or to have some go out, get a walk, ये सारी चीज़ ज़रूरी होती है. But even if you are wasting 2 hours in gym, तो not going to gym is not going to do anything to you for 2 months. You can, okay, ना mind भी तो fresh रखना पड़ता है. Go out for a walk, 15-20 minutes, come back. That's all. That is all what we need. We need to freshen up. We need to clear our mind, or we need a break from studies for after let us say for 15 minutes or for 20 minutes after every 1 hour or 2 hour. Do that. ओके, यूं नहीं कि बैडमिंटन खेलने चले गए या फुटबॉल खेलने चले गए और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बाद आ रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. That is especially when you are having your papers or your exam is near. Next point is assessing their performance. ये पॉइंट बहुत कम बच्चे करते हैं. ठीक है. When I ask most of the students मॉक देना स्टार्ट किया. ठीक है, ये बात मैं आपको बताऊंगी जुलाई या अगस्त की. Okay, they have their paper in December. आपका क्लैट कब है? आपका क्लैट है दिसंबर में. ये मैंने कुछ बच्चों से पूछा जुलाई अगस्त में कि बच्चों आप लोगों ने मॉक देना स्टार्ट किया. दे आर प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम 1 year, बट उन्होंने कहा कि नहीं मैम एग्जाम से 1 महीना पहले देना स्टार्ट करेंगे. यू आर वे टू रॉन्ग देयर. यू हैव ऑलरेडी मिस्ड half of the things that you should have done for your preparation. Ask any topper, they will always say they always know this thing already कि यार mocks जो होते हैं ना वो preparation का एक हिस्सा होते हैं. Okay, they are always a part of your preparation. They are never something that you are due to. क्या syllabus तो complete हुआ नहीं, mock कैसे देंगे मैम? No, give your mocks, क्योंकि once you are giving your mocks, एक तो सबसे बड़ी बात you are in practice. Okay, you keep on practicing. आप practice में रहते हो, प्लस उसका assessment और करना कि कौन सा section weak है, and then उस section पे work करना. This is what gives them an edge. This is what that benefits them, benefits the topic. They keep on assessing their performance. और क्या होता है? Once the student, I've seen the students, they literally fall when they see कि यार mock देना है. Exam से 1 महीने पहले they started giving their mocks, and then what happens in this case? कि मैम हमें तो पेपर में कंसंट्रेशन ही नहीं बना, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है इतने सारे पैसेजेस. क्लैट इज मोस्टली पैसेज बेस्ड. अब आदत ही नहीं है इतने सारे पैसेजेस एक साथ करने की, तो हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं बना. मैम हम तो पढ़ते पढ़ते ही कंफ्यूज हो गए. मैम वी वर मगिंग अप क्या, वी वर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन आवर पैसेजेस. हम एक पैसेज पढ़ते दूसरे पे आते तो हमें ऐसा लगता है कि हम पिछले वाले ही पढ़ रहे हैं. आई हैव सीन स्टूडेंट्स सेइंग दिस थिंग, आई हैव हर्ड देम सेइंग दीज थिंग्स. सो ये क्यों होती है? क्योंकि हमें आदत नहीं होती है. एंड व्हाट इज विद टॉपर्स कि उनको बहुत, इट्स एक्चुअली देयर हैबिट टू गिव द मॉक्स. मॉक दिया, अच्छा यहाँ पे ये सेक्शन वीक है, अपने आप भी पता पड़ जाएगा, क्योंकि व्हेन यू आर गिविंग वेरियस मॉक्स में हर तरह की चीज आती है. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ योर यू आर गोइंग टू गिव 5-6 मॉक्स में सारी चीजें आपके सिलेबस की कवर हो जानी है, तो आपको पता पड़ जाता है ये चीज मेरी अच्छी है या ये चीज मुझे नहीं आती है. सो इन दैट वे दे असेस देयर परफॉर्मेंस एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट. So please start giving mocks. Even if you have not started, you still have 2 months. Start giving your mocks right now. That's really going to help in your performance and assess your performance. Mock देके छोड़ना नहीं है. यार क्या हुआ इस टाइम में? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वांट्स किया, क्वांट्स करने में मैंने पूरे 15 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन मुझे 22 मिनट्स लगे. दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट. ठीक है, हमें मैक्स टू मैक्स रिड्यूस योर टाइम. नेक्स्ट टाइम 20 मिनट्स लगने चाहिए. If I'm doing all the 15 questions, bring this time down to 15 minutes, then 17 minutes. 17 minutes is good. 15 to 17 minutes is good for quants. ठीक है, मैं कर पूरा रहा हूँ, लेकिन मैंने 22 मिनट या लेट अस से किसी ने 30 मिनट्स लगा दिए. 15 क्वेश्चन में 30 मिनट्स लगाना फॉर क्लैट, नो दैट्स नॉट जस्टिफाइड. You lose on other sections. Okay, so assess your performance. That is one of the habits of the toppers there. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैम आपने तो बोला है कि नहीं बाहर जाके खेलना नहीं है इतने ज्यादा, या नहीं यू डोंट हैव टू स्पेंड टाइम. आई हैव सेड कि आपको 3-4-5 घंटे जाके नहीं खेलना, आधा दिन खेल रहे हैं, ऐसा नहीं करना. हेल्दी लाइफस्टाइल. हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड सम ऑफ द एक्सरसाइजेस, दे इंक्लूड हेल्दी फूड. This is again a habit of toppers के you don't have to become a couch potato. खाते जा रहे पढ़ते जा रहे, खाते जा रहे पढ़ते जा रहे. ठीक है, no, you don't have to do that. हमें बहुत ज्यादा आलस आएगा अगर आप ऐसे करेंगे तो. 8 hours की प्रॉपर हेल्दी स्लीप लेनी है ना.
some can do with 7 hours also, some will, पर 3-4 घंटे सो रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा. You won't be able to concentrate. You won't be able to concentrate on D-Day. ठीक है. I've seen students के आंखें लाल होती है, अंदर गड्ढे में घुसी हुई होती हैं आंखें, when they are coming on your exam day. भाई क्या हो गया, रात भर बैठ के पढ़ रहा था. क्यों? पूरे साल भर क्या किया आपने? Right. So that is included in healthy lifestyle. Take care of your health. This is the most important point जो कि टॉपर्स को पता होता है. A healthy body. Right. What you have और क्या healthy? हाँ, a healthy mind resides in a healthy body. आपकी body ही healthy नहीं होगी तो आपका mind healthy कैसे रहेगा? So to keep our brain, to keep our mind healthy, we need to keep our body fit. A small amount of exercise daily, a walk, or just spending some happy good time with family, that is good enough, right? Especially during your exams. इसमें ये नहीं कह रही हूँ खेलना बंद करो. अरे when you do not have your exam और एग्जाम में 6-7 महीने बाकी हैं, तब तो give any time you want to give in gym or in playground. I know you love sports, ठीक है. Stop using phone. I would not say stop using phone literally. I would say कि पर phone using phone के आस कम कर दीजिए. आप ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ रहे हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्पेशली इफ you are wasting time in watching phone also, that's going to hurt your eyes. Okay, so these are some of the points जो कि मुझे आपको बताने पड़ रहे हैं, लेकिन ये टॉपर्स को ऑलरेडी पता होते हैं, and trust me, they are already working over it. They do not waste time. They do not go for other things or stupid things that would waste their time. So that was all for this session. I hope you liked the session. Do comment and subscribe to our channel, Legal World. This was all. Thank you so much. Take care. Bye-bye.